السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 32 آیت نمبر 89 سے 93۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگو، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں، اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ They ask you, O Muhammad, about the new moons. Say, they are measurements of time for the people and for Hajj, and it is not righteous to enter houses from the back, but righteousness is in one who fear Allah and houses from their doors, and fear Allah that you may succeed. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ Fight in the way of Allah those who fight you about, do not transgress. Indeed, Allah does not like transgressors. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد الحرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ And kill them whenever you overtake them, and expel them from wherever they have expelled you. And fitna is worse than killing. And do not fight them at al-Masjidul Haram until they fight you here. But if they fight you, then kill them. Such is the recompense of the disbelievers. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ And if they case, then indeed Allah is forgiving and merciful. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائے تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ Fight them until there is no more fitna, and until worship is acknowledged
to be for Allah, but if they case, then there is to be no aggression except against the oppressors. हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने चाँद के बारे में सवाल किया, जिस पर यह आयत नाजिल हुई कि इससे कर्ज वगैरह के वादों मियाद मालूम हो जाती है, औरतों की इद्दत का वक्त मालूम होता है, हज का वक्त मालूम होता है, मुसलमानों के रोज़े के अफ्तार का ताल्लुक भी इसी से है। मुसन्निद अब्दुल रज़ाक में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने चाँद को लोगों के वक्त मालूम करने के लिए बनाया है। इसे देख कर रोज़े खोलो, इसे देख कर ईद मनाओ। अगर अब्रो बारह की वजह से चाँद ना दिख सको तो 30 दिन पूरे गिन लिया करो। इस रिवायत को हज़रत इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है। यह हदीस और संदोल में भी मरवी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा इस से एक मौक़िफ़ रिवायत भी है। आगे चलकर इरशाद होता है कि भलाई घरों के पीछे से आने में नहीं, बल्कि भलाई तकवा में है। लोगों में दरवाज़ों से आओ। सही बुखारी शरीफ में है कि जाहिलियत के ज़माने में ये दस्तूर था कि एहराम में होते तो लोगों में पुश्त की जानिब से आते, जिस पर ये आयत नाजिल हुई। दाऊद तयालसी में भी ये रिवायत है। अंसार का आम दस्तूर था कि सफ़र से जब वापस आते तो घर के दरवाजे में नहीं घुसते थे। दरअसल ये भी जाहिलियत के ज़माने में फरिश्तों ने अपने लिए एक और इम्तियाज़ कायम कर लिया था कि अपना नाम इन्होंने हम्स रखा था। एहराम की हालत में ये तो बराह रास्त अपने घरों से आ सकते थे, लेकिन बाकी के लोग सीधे रास्ते घरों में दाखिल नहीं हो सकते थे। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग से इसके दरवाजे से निकले। आपके एक अंसार सहाबी हज़रत उतबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आपके साथ ही इसी दरवाजे से निकले। इस पर लोगों ने हज़रत से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक तिजारत पेशा शख्स है, ये आपके साथ आपकी तरह दरवाजे से क्यों निकले? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह करते देखा, क्या माना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से है, लेकिन मैं भी तो आपके दीन पर ही हूँ। इस पर ये आयत नाजिल हुई। इब्ने भी हातिम, हज़रत इब्ने अब्बास वगैरह भी ये रिवायत मरवी है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जाहिलियत के ज़माने में बहुत सी कौमों का ये रिवाज था कि जब वो सफ़र के इरादे से निकलते, फिर सफ़र अधूरा छोड़कर अगर किसी वजह से वापस चले आते तो घर के दरवाजे से घर में ना आते, बल्कि पीछे की तरफ से चढ़ कर आते, जिससे आयत में रुका गया। मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इतिकाफ़ की हालत में भी यही दस्तूर था जिसे इस्लाम ने ख़त्म किया। अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले मदीना का ईदों में भी यही दस्तूर था जिसे इस्लाम ने ख़त्म कर दिया था। फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्मों को बजा लाना, इसके मना किए हुए कामों से रुक जाना, इसका डर दिल में रखना, ये चीज़ें हैं जो दरअसल इस दिन काम आने वाली हैं, जिस दिन हर शख्स अल्लाह के सामने पेश होगा और पूरी जज़ा सज़ा पाएगा। यानी जो लोग खुदा के काम में तुम्हारा साथ रास्ता रोकते हैं और इस बिना पर तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं कि तुम खुदा की हिदायत के मुताबिक निज़ाम ज़िंदगी की इस्लाह करना चाहते हो और इस इस्लाही काम की मज़ाहमत में जबरो जुल्म की ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं, इनसे जंगें करो। इससे पहले जब तक मुसलमान कमज़ोर और मुंतशिर थे, इनको सिर्फ तबलीग का हुक्म था और मुखालिफिन के जुल्म सितम पर सब्र करने की हिदायत की जाती थी। अब मदीने में इनकी छोटी सी शहरी रियासत बन जाने के बाद पहली मर्तबा हुक्म दिया जा रहा है कि जो लोग इस दावत इस्लाह की राह में
मज़ाहमत करते हैं इनको तलवार का जवाब तलवार से दो। इसके बाद यही जंग बदर पेश आई और लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। यानी तुम्हारी जंग ना तो अपनी मादी अगराज के लिए हो, ना इन लोगों पर हाथ उठाओ जो दीन हक की राह में मज़ाहमत नहीं करते, और ना लड़ाई में जाहिलियत के तरीके इस्तेमाल करो। औरतों और बच्चों और बूढ़ों और ज़ख्मियों पर दस्त दराजी करना, दुश्मन के मकतूलों का मसला करना, खेतों और मवेशियों को खामखां बर्बाद करना और दूसरे तमाम वहशियाना और जालिमाना अफ़ाल हद से गुजरने की तारीफ में आते हैं, और हदीस में इन सब की ममानत वार्द है। आयत का मंशा ये है कि क़ुव्वत का इस्तेमाल वहीं किया जाए जहाँ वो नागज़ीर हो, और इसी हद तक किया जाए जितनी इसकी ज़रूरत हो। यहाँ फितने का लफ्ज़ इसी मायने में इस्तेमाल हुआ है जिसमें अंग्रेज़ी का लफ्ज़ एक्सक्यूशन इस्तेमाल होता है, यानी किसी गिरोह या शख्स को महज इस बिना पर जुल्म व सितम का निशाना बनाना कि इसने राइंज अन वक्त ख़यालात और नज़रियात की जगह कुछ दूसरे ख़यालात और नज़रियात को हक पाकर कबूल कर लिया है, और वो तनकीद व तबलीग के ज़रिए से सोसाइटी के मौजूदा अलवक़्त निज़ाम में इस्लाह की कोशिश करता है। आयत का मंशा ये है कि बिलाशुबा इंसानी खून बहाना बहुत बुरा फ़ेल है, लेकिन जब कोई इंसानी गिरोह ज़बरदस्ती अपना फ़िक्री इस्तिबदाद दूसरों पर मुसल्लत करे और लोगों को कबूल हक से बजबर रोके और इस्लाह व तग़यीर की जायज़ व माक़ूल कोशिशों का मुकाबला दलाइल से करने के बजाय हैवानी ताकत से करने लगे, तो वो कत्ल की बनिस्बत ज़्यादा सख्त का अर्तकाब करता है, और ऐसे गिरोह को बज़ोर शमशीर हटा देना बिल्कुल जायज़ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।
باز آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے باز آ جانا نہیں بلکہ فتنے سے باز آ جانا ہے۔ کافر، مشرک، دہریے ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنا جو عقیدہ رکھتا ہے رکھے، اور جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہ کرے۔ اس گمراہی سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اسے فہمائش اور نصیحت کریں گے، مگر اس سے لڑیں گے نہیں، لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کے بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور خدا کے بندوں کو غیر از خدا کسی کا بندہ بنائے۔ اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے حسب موقع اور حسب امکان تبلیغ اور شمشیر دونوں سے کام لیا جائے گا، اور مومن اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا جب تک کفار اپنے اس فتنے سے باز نہ آ جائیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں، تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جب نظام باطل کی جگہ نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں اہل حق بالکل حق بجانب ہوں گے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظام حق کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی ہو۔ اگرچہ اس معاملے میں بھی مومنین صالحین کو زیب یہی دیتا ہے کہ غور و درگزر سے کام لیں اور فتح یاب ہو کر ظالموں سے انتقام نہ لیں، مگر جن کے جرائم کی فہرست بہت ہی زیادہ سیاہ ہوں، ان کو سزا دینا بالکل جائز ہے، اور اس اجازت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ جن سے بڑھ کر غور و درگزر کسی کے شان و شان نہیں۔ کسی جگہ نظام حق ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے کے اہل حق جن سے بڑھ کر غور و درگزر کسی کے شایان شان نہ تھا۔ چنانچہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نصیر بن حارث کا قتل اس فتح مکہ کے بعد آپ کا 17 آدمیوں کو عفو عام سے منتشنہ فرمانا، اور پھر ان میں سے 4 کو سزائے موت دینا اسی اجازت پر مبنی تھا۔ تو یہ تھی جناب آج کی ہماری ریکارڈنگز، کیونکہ بہت دنوں کے بعد کری تو اس لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں تو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح میرے ساتھ جوائن رہیے تاکہ نئی سے نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت معلومات حاصل ہو جائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔